Hello everyone, welcome to my newer Talk with Toppers. So today in this podcast we have Aditya from very spiritual city Varanasi. So in this podcast we will try to understand because he's a CMAT aspirant and his score is 99.74 percentile. And basically we will try to understand everything related to his preparations about his background. So first of all, welcome Aditya in this podcast session. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So please say something about your educational background and about basically from where you belong to, as well as what is your future goal. Sir, I'm from Varanasi. My name is Aditya Maheshwari. I did Mm-hmm. my 12th from Mm-hmm. Varanasi, and after that I gave CLAT and secured an All India rank 785, wherein Mm-hmm. I got admission in National Law University, Punjab. Oh, that's great. Yes, after while doing law, I got Mm-hmm. the opportunity to explore various Mm-hmm. avenues. I Okay. worked with political parties. I worked in Mm-hmm. local court, Supreme Court, in Mm-hmm. corporate law. But I decided to pivot from law to management because I just wanted to explore more. Mm-hmm. So So after only five, hmm, yes, sir. only to explore more or any other specific region because you already a law graduate, so you can try in master in other law related programs, but you are trying in a management. So any specific reason? सर वो 5 साल में Mm-hmm. आई गॉट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सब कुछ देख लिया लॉ में. बट Mm-hmm. मतलब उतना इंट्रीग कर नहीं रहा था जो पांच मतलब जो लेके दिमाग में चला था कि लॉ Right. में ये होगा. वो मतलब वो टीवी सीरीज और वो सब वैसा Mm-hmm. नहीं. तो वही तो उसके बाद ये था कि या तो सिविल सर्विसेज या तो फॉरेन इंडियन फॉरेन सर्विस का बहुत मन में था. Mm-hmm. फिर वही यूपीएससी सीट्स इतनी कम है, तो आई Mm-hmm. गेव 1 ईयर टू यूपीएससी. और फिर Mm-hmm. मेरा बैकअप प्लान था सीमैट सीटी. Okay. तो इसलिए So, so basically, your backup plan is to do the something in management, so masters यस. in management related. Okay, so what is your basically future plan? It means after MBA, then what? In which sector you want to work? राइट नाउ अभी तो मैंने फाइनेंस का सोचा है कि इफ आई Mm-hmm. गेट इनटू द टॉप क्रीमी कॉलेजेस, टीयर Mm-hmm. वन कॉलेजेस, तो आई विल बी टारगेटिंग फाइनेंस, Mm-hmm. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स एंड अदर रोल्स, क्योंकि Mm-hmm. वो सिर्फ टीयर वन कॉलेजेस में ही आता है. Right, right. इसलिए आई हैव ऑलवेज बीन टारगेटिंग ओनली टीयर वन कॉलेजेस. मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं इट्स आइदर टीयर वन या तो फिर मतलब ही नहीं है. Chalo, that's great. हम्म. Okay, so basically now we will discuss about the CMAT because this podcast is regarding that. So जो भी इस podcast को जो भी students देख रहे हैं, जो भी next aspirant देख रहे हैं, उनके point of view से भी हम आपसे काफी कुछ discuss करेंगे questions. So first of all, when you started the preparation for this CMAT exam? सर जस्ट आफ्टर सीईटी एमएच सीईटी मैंने दिया. उसके Mm-hmm. बाद ये था कि मतलब और कौन सा वे है थ्रू विच आई कैन रीच Mm-hmm. जेबीआईएमएस. Right, क्योंकि right. वही क्योंकि सीईटी इतना वैसा एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन ऑलवेज इज वेरी क्योंकि मेरा Hmm. बहुत अच्छा पेपर गया था. एंड देन CT व्हेन का. आई हाँ, और फिर मैंने स्कोर देखा तो 99.64, और फिर कुछ होना जाना था नहीं Hmm. उससे. तो आई थॉट लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, सीमैट के थ्रू देखते हैं. तो फिर Hmm. मैं सीमैट पे लग गया. मैंने बहुत सारे आपके कोचिंग के टॉपर्स के पहले के इंटरव्यूज Hmm. देखे, तो उनका बहुत एनालिटिकल अप्रोच था. वो लोग पीडी मतलब एक्सेल शीट बना के मॉक्स Correct. वैसे. बट मैंने ट्राई किया, मैंने 3-4 मॉक वो ट्राई किया, बट मेरा वैसे हो नहीं रहा था कि Hmm. पहले मॉक करूं फिर स्कोर लिखूं. तो मेरा थोड़ा इंट्यूटिव अप्रोच था कि मुझे बस देखना था कि कहाँ कहाँ मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ्स को, और क्या क्या Hmm. नहीं टच करना है. Hmm. सीमैट का मैथ्स वाज वेरी बेसिक, Hmm. मतलब एज कम्पेयर टू कैट एंड ऑल. तो मैं मेरे Other को ये था other कि management entrance. हाँ, तो मेरा ये था कि मैं मॉक्स देके अपने मैथ्स को तो मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. मैं 20 on 20 टारगेट कर सकता हूँ. Correct, उसके बाद correct. इंग्लिश वाज आल्सो वेरी इंट्यूटिव, वेरी बेसिक इंग्लिश, कुछ ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग और वो सब नहीं था. Hmm. तो मैंने बोला कि ये भी इंट्यूटिव लेवल पे हो जाएगा, तो इंग्लिश भी वैसे हो गया. Correct. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाज ऑलवेज माय स्ट्रेंथ. तो फिर Hmm. ये था, उसे करने में ही मजा आता था. Correct. फंसते थे हमेशा जीके एंड इनोवेटिव एंड Innovation. एंटरप्रेन्योरशिप. और फिर डी डे पे जाके बस एक गलती हो गई लास्ट के 5 मिनट में. आई रिविजिटेड द क्वेश्चंस दैट आई अटेम्प्टेड करेक्टली, और मैंने उन्हें जाके लास्ट 5 मिनट में चेंज कर दिया. Oh. पता था कि सही है, बट मैंने बोला कि नहीं, इतना डाइसी नहीं. तो वही लास्ट Hmm. 4 मिनट में मैंने 4-5 सही क्वेश्चन गलत कर दिए.
ओहो, चलो इस पे भी हम आएंगे, बिकॉज हम्म ऐसी सिचुएशन भी होती है, पैनिक हम्म सिचुएशन बन जाती है। सर MBA CT class started after हम्म around Feb में I started for MBA CT because तब तक मेरा ये हो गया था कि I wasn't getting into any good tier 1 college. हम्म तो ये था हम्म what options are left on my platter and I wanted to dive into जो एग्जाम्स बचे हैं वो अच्छे से निकालना है. हम्म एज वेल एज यू मेंशन वन मोर थिंग कि यू ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम, तो आई थिंक यस सर. सी सैट एग्जाम में भी मैथमेटिक्स सेक्शन भी है, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आता है, बाकी जीके हाँ तो हाँ. भर भर के है। हम्म सो जो सी सैट एग्जाम, इट मीन्स कि ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो बेसिकली सब्जेक्ट से पूरा आप अवेयर रहोगे। हाँ मतलब तो ये अच्छा रहता है कि अब ये जो सीमैट और सीटी जैसे एग्जाम है दे प्रिपेयर यू फॉर द सीसैट आल्सो. सीसैट इनसे तो नीचे ही आता है. सीसैट इज तो नॉट. हम्म तो एक्चुअली मेरा कंसर्न ये है कि बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट सिलेबस यू ऑलरेडी अपीयर्ड दीज टू एग्जाम, तो सीमैट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो या फिर जो भी ये एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे एमबीए सीईटी हो या फिर सीमैट हो या फिर मैट हो, अदर्स लगभग लगभग सिलेबस सबका सेम ही है। थोड़े से सेक्शन अप्स एंड डाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए सीईटी में जीके नहीं आता, यहाँ पे जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन एक एक्स्ट्रा हो जाता है सीमैट में। So after understanding the syllabus difficulty level, what you can suggest to students कि कितना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन, कि दे कैन कवर द इंटायर सिलेबस, जो एकदम हाँ. फ्रेश से स्टार्ट कर रहा इफ स्टार्टिंग अफ्रेश देन एटलीस्ट 6 months मतलब मिनिमम 6 महीने है। से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए. हम्म बिकॉज हम्म फिर क्योंकि आपको हर चीज को क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है यू नीड टू मैक्सिमाइज ऑन एवरी सब्जेक्ट वेदर दैट हम्म बी इंग्लिश मैथ्स और लॉजिकल. क्योंकि ये तीन में तो आपको फुल लाना ही पड़ेगा इफ यू आर हम्म टारगेटिंग 99 परसेंटाइल प्लस. करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। 6 महीना तो लगेगा ही सर कि मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो आई थिंक अगर से आपके वो 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए होते तो आपका 100% हो जाता। मेरा तो सर आई स्कोर्ड 99.9 7 नाइन 8. 94 परसेंटाइल हेयर आई कैन सी इन हाँ योर। सर बट वही मतलब वो जीके में 98 पॉइंट कुछ रह गया. नहीं तो वो हम्म जीके का ही वो हो गया. 4 क्वेश्चन मैंने मुझे आते थे तब भी आए मतलब जाके लास्ट हम्म 2 मिनट में मैंने बोला नहीं नहीं. तो क्या क्या ऐसा मिस्टेक हो गया, बिकॉज यू आर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट और जीके तो उनका सबसे बेस्ट होता है। अब मेरे को लगा कि इतना इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है तो वो एक दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं ये कुछ. और अंडर मतलब एस्टिमेट कर लिया आपने। हाँ तो भाई वो कौन एक सा क्वेश्चन क्वेश्चन था था. आप, कुछ गौतम याद बुद्ध है? का क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन दिस BC. तो हम्म। मेरे को लग रहा था कि ये गलत है बट मैंने फाइव बोला कि फाइव इतना. सिक्सटी थ्री 563 है। हाँ तो बट उतना मेरे को लगा कि इतना फैक्चुअली ये लोग नहीं पूछेंगे तो ये स्टेटमेंट सही होगा. बट मेरे को हम्म लग रहा था आई रेड कि मतलब एक इंट्यूशन था कि ये गलत है स्टेटमेंट. बट मैंने हम्म बोला कि नहीं सीमैट वाले तो इतना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैंने बोथ स्टेटमेंट ट्रू मार दिए. जबकि मुझे हम्म। लग रहा था. एंड देन देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फॉरेन भारत रत्न. तो उसके अंदर खान अब्दुल गफार खान खान वाज अब्दुल। द आंसर. राइट। तो मेरे को लगा कि पता नहीं उस नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पे आपने मिस्टेक कर दिया, भाई बिकॉज भाई. ये तो सब मैं. सारे क्वेश्चन हम क्लास में तो बहुत मतलब सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे हम्म से एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब। हम्म नहीं यही हम्म। मैंने सिली मिस्टेक कर दी 3-4 और उसके चक्कर में So guys, बिकॉज. those who are watching this podcast, they can understand as a exam point of view, पैनिक सिचुएशन होता है और सीली मिस्टेक भी होती है, तो ये आपको नहीं करना है, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करके और कामली आप अटेम्प्ट करो। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो आउट ऑफ दिस ऑल 5 सेक्शन, विच सेक्शन वाज डिफिकल्ट फॉर यू? सर INE वाज डिफिकल्ट बिकॉज उसके अंदर ये नहीं पता रहता है कि आप अटेम्प्ट तो अच्छे से कर दोगे. हम्म And मतलब आप पूरा लॉजिक लगा के अटेम्प्ट कर दोगे बट यू नेवर नो कि आंसर सीमैट वाले क्या देंगे. हम्म तो वो एक दुविधा थी. और उसके हम्म अलावा मैथ्स में हमेशा आई वॉज ऑलवेज ज्योमेट्री से मुझे डर लगता था. तो मेरे को ये डर था कि अगर वो लोग 2-3 क्वेश्चन भी फेंक दिए ज्योमेट्री के मेरी तरफ हम्म देन आई वोंट बी एबल टू. क्योंकि इस बार भी सर्ट्स और उन सब के 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए थे तो हम्म ऑन द गिवन डे मैं थोड़ा दिमाग चल गया. नहीं तो आई हम्म वाजंट प्रिपेयर्ड विद सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड ऑल दैट. हम्म यही थोड़ा मैथ्स में डर था बट लॉजिक इंग्लिश वाज तो गुड. मैथ्स वाज हम्म लिटिल डाइसी फॉर मी. ओके, सो हाउ मेनी आंसर यू करेक्टेड इन जीके सेक्शन? GK में I guess 14 to 15 were right, 5 were wrong, 5 to 6 were wrong.
वैसे इट्स नॉट बैड बिकॉज हम्म सीमैट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आइडियली सजेस्ट भी करता हूँ स्टूडेंट को कि एटलीस्ट 14 15 16 तक इफ यू आर करेक्टिंग तो हम्म उसके बाद रिस्क मतलब माइनस मार्किंग है। हम्म। ओके, तो अगर इतना करे तो दैट इज द बेस्ट स्कोर इन इन बेसिकली जीके सेक्शन में। और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर में अच्छा, उसके अंदर 10 11 12 सही थे। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आई थिंक, हाँ क्योंकि उस उसमें नहीं, स्कोर उसके करना। अंदर तो, उसके अंदर आई चेक द आंसर की तो मतलब आई wasn't satisfied with the answers that CMAT the authorities gave. बाय द वे अदर थ्री सेक्शन फॉर एग्जांपल इंग्लिश में तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इज अ वेरी गुड सेक्शन जहां पे आप फॉर हम्म। श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि आराम से 17 18 90 तक आप स्कोर कर सकते भाई इसलिए आई वाज, हमेशा से यही प्लान था सर, जो ये 60 क्वेश्चन है इनमें 60 में 58 प्लस चाहिए ही, हो। 58 प्लस मस्ट बी करेक्ट। तो इसलिए मेरा इंग्लिश में एक क्वेश्चन वाज अ सिली मिस्टेक, एक क्वेश्चन गलत हुआ। लॉजिक में 3 क्वेश्चंस पर सिली मिस्टेक, सब सिली मिस्टेक्स हुई, और मैथ्स में एक डेली क्वेश्चन मिस्टेक था। यहाँ पे हो रहा है। हाँ और हम्म मैथ्स में एक सिली मिस्टेक, 4 क्वेश्चन गलत थे इन 3 सेक्शन में। और जितने भी हम्म गलत हुए वो आई और जीके में हुए। सो गाइस, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड सिली मिस्टेक कितना मतलब इंपॉर्टेंट या फिर बैड रोल प्ले करता है आपके एक्चुअल एग्जाम में। तो इस चीज को अवॉइड करो, और इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो आफ्टर अटेम्प्टिंग एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। जब आप नंबर ऑफ हम्म मॉक टेस्ट अपेयर करते हो 10 20, सो ऑल मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने आप, अपने वीक एरिया को समझ सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदित्य कि how many mock tests you attempted during this preparation for the CMAT specifically? सर आई गेव अराउंड 25 to 30 मॉक्स। 25 से 30 मॉक टेस्ट, बिकॉज यस सर। आपका मेन बैकबोन यही था कि मॉक टेस्ट से ही अपने को इम्प्रूव करना है। मेरा यही, और सर मैंने जितनी गलतियां की थी पहले कि मैंने मॉक्स नहीं दिए और फिर हम्म मॉक्स अच्छे से एनालाइज नहीं किए, वो सब मुझे नहीं रिपीट करनी थी। तो आई वाज लाइक हम्म फाइनल पेपर ऑफ द सीजन है सीमैट। तो और ठीक है, सीमैट इज द मोस्ट इजी एग्जाम आउट ऑफ ऑल द एप्टीट्यूड एग्जाम्स, तो इसके अंदर हम्म जितना अपने आप को दे सकते हो दे दो। तो आई हम्म गेव 25 30 मॉक्स, आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉक्स। एंड भाई, एंड आई गेव अ लॉट ऑफ पैसिव मॉक्स। पैसिव मॉक्स राइट भी मैंने बहुत दिए। बस मैं क्वेश्चंस देखता था, अगर मेरे को पता था कि ये कर सकता हूँ देन आई डिड नॉट सॉल्व इट। बट अगर राइट लगता था कि कुछ है, मतलब कुछ क्वेश्चन में दम है, तो तब देन आई यूज्ड टू टेक दैट क्वेश्चन अप। चलो तो चलो ग्रेट। सो बेसिकली गाइज एटलीस्ट ट्राई करो 20 से 30 मॉक देने का, और ईच मॉक के बाद मेरा सजेशन होगा जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट योर सेल्फ, कहाँ पे वीक एरिया है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये सब सारी चीजें बहुत मैटर करती है इन सब सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि एक बहुत ज्यादा जो मुझे स्टूडेंट साइड से क्वेश्चन आता है कि सर आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं उनको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताता हूँ कि जीके को पहले अटेंड करो, इजी क्वेश्चन को करो। So what was your strategy to appear the mock test and each section? मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। मेरा ये था कि हम्म पहले मैथ्स, बिकॉज मैथ्स वाज, मेरा ये था कि मैं जो सॉल्व करूंगा वो सही होगा। राइट। तो फिर पहले मेरा ये था कि पहले मैथ्स करूंगा, फिर लॉजिक हम्म करूंगा, और फिर इंग्लिश करूंगा, मतलब जैसे जिस सीरियल वाइज आता है उसी करेक्ट हिसाब से करेक्ट। करूंगा। बिकॉज मैंने उसी हिसाब से अपना वो बना लिया था कि मैथ्स मैक्सिमाइज करना है, लॉजिक मैक्सिमाइज करना है, इंग्लिश। तो ये 3 सेक्शन में अगर मेरा अच्छा चला गया, उसके बाद मैं पैनिक कम हो जाता था, और फिर हम्म जीके और इनोवेशन फिर मैं कूल हेड से वो कर सकता करेक्ट। था। इसलिए आई मेड मैथ्स दीज ऑल सब्जेक्ट्स माई स्ट्रेंथ, और फिर मैं हम्म इसलिए पहले उन्हें अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करता था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वर्सेस क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम अदर एमबीए एंट्रेंस को देखें, जैसे एमएससीटी को देखें, तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम होता है। करेक्ट। बट अगर सीमैट की बात करें तो सीमैट में काफी टाइम होता है, पूरा 3 आवर्स का टाइम मिलता है, जबकि 100 क्वेश्चन ही है। तो टाइम हम्म। वर्सेस अगर क्वेश्चन को देखो तो काफी टाइम मिलता है आराम से करने का। सो क्या ऐसा सिचुएशन भी होता है, या आपको ऐसा फील हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में सब बहुत मतलब टाइम कैसे चल निकल गया, फिर टाइम कम पड़ गया, ऐसी कोई सिचुएशन होती है क्या? नो नो, सीमैट में कोई टाइम क्रंच का सर मेरे हम्म लिए तो कोई सीन नहीं था, बिकॉज इतने मॉक्स दे दिए थे पहले ही, तो मतलब टाइम हम्म मैनेजमेंट तो वाज इतना तो हो गया था कि इतना, और हम्म। मतलब काफी टाइम रहता है सर फॉर 100 क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई आस्किंग दिस यस क्वेश्चन सर। ना, कि जो भी न्यू एस्पिरेंट है हम्म नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करें, तो हम्म एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड कर ले कि टाइम का मैटर नहीं होता, दे जस्ट हैव टू इंप्रूव ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, और नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हम्म। मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेके बैठ ही गए हैं और हाँ फिर हाँ, उसे ऐसा दो भी तीन नहीं। दो तीन टाइप से सॉल्व कर रहे हैं।
राइट। हाँ, इतनी प्रैक्टिस कर तो लेनी चाहिए कि मतलब जैसे सॉल्व कर रहे हो आंसर निकालो, आगे बढ़ो। नहीं, आइडियली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे स्टूडेंट का, जैसे कभी कभी बहुत सारे अदर्स एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें 120 मिनट्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, बट हम्म। यहाँ पे आपको आराम से 180 मिनट मिला हुआ है। हम्म। 180 मिनट मिला हुआ है, बट 100 क्वेश्चन है, आराम से करना है। हाँ, बट क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं हम्म। काफी। अभी तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रीलिम जैसा जीके लोग भी पूछना स्टार्ट कर हाँ, दिए। 3 4 क्वेश्चन वही जैसे गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट सब बेस्ड जो पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड। तो वही थोड़ा नए क्वेश्चंस तो ला रहे हैं सीमैट। मतलब एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन आपको आता है, उससे काम नहीं चलेगा, कम से कम हम्म। उसे तीन आपको पता होगा, देन यू कैन मैच एग्जैक्टली। सो हम्म। थोड़ा डिटेल में गाइस स्टडी करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि ठीक है, आपने जब भी एमएस सीईटी और सीमैट जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो डेली बेसिस पे आप तो मॉक में 30 मॉक आपने अटेम्प्ट किया। बाय द वे, डेली आपका शेड्यूल क्या था? हाउ मेनी आवर यू डिवोटेड फॉर द प्रिपरेशन? सर मेरी प्रिपरेशन तो हो गई थी हम्म। आफ्टर आई गेव कैट जैट, तो कैट जैट तक मेरी ये हो गया था, बेस स्ट्रांग हो गया था मेरा। कैट भी आपने अपियर किया था? हाँ सर, मेरा कैट में भी 96 परसेंटाइल था, जैट में आई स्कोर्ड 89.9। हम्म। और फिर तो मतलब वहां पर मेरा बेस हो गया था स्ट्रांग। तो तो उसके बेसिकली बाद वहां ये से था। आपने बेस अपने काफी बेटर कर लिया था कैट से। हाँ, तो ये था कि उसके बाद तो मतलब उतना बस रिवीजन करना होता था, जो थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स थे, लाइक हम्म नंबर सिस्टम के ट्रिक्स एंड टिप्स, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब एक बार रिवाइज करना होता था, क्योंकि हम्म अगर वो हम्म प्रैक्टिस में नहीं रहता था तो भूल ही जाता था। तो बस मॉक्स वॉज द की, मुझे पता था कि जो भी एग्जाम आ रहा है उसकी मॉक सीरीज ले लो और फिर मॉक्स लगाओ, बस। हम्म। दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। सो गाइज, जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड आदित्य ने काफी मल्टीपल कम्पिटेटिव एग्जाम्स को अपीयर किया हुआ, काफी कुछ एक्सपीरियंस है, एंड ही ऑलरेडी, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि ही ऑलरेडी क्लियर द फ्लैट एंड एनएलयूज पास आउट। ओके, तो काफी कुछ आप लोगों को अंडरस्टैंड करने को मिलेगा, बिकॉज ही अपीयर्ड द कैट जैट एंड दीज मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, और क्लैट को भी इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। So, Aditya, I want to know, basically this question is from the student side, कि यस सर। एटलीस्ट एक होता है टाइम मैनेजमेंट। आप अभी अपना सिनेरियो मत लो, आपका सजेशन मुझे चाहिए कि इफ समवन वांट टू क्रैक सच टाइप ऑफ द मैनेजमेंट एग्जाम, समझो कैट से ही स्टार्ट कर लो, सबसे पहले कैट आता है, उसके बाद सीईटी आता है, फिर सीमैट आता है। तो एज यू सेड कि 6 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट डेली बेसिस पे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करे, कितना आवर डिवोट करे कि इजिली सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकता है, सर इफ वन इज एक स्टार्टिंग एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से? हाँ, अगर नवंबर में कैट है तो 6 महीने हम्म पहले इफ अ स्टूडेंट इज एस्पिरेंट इज स्टार्टिंग, देन हम्म। ऑन अ डेली basis he needs to give at least 5 to 6 hours, 5 to 6 आवर। minimum 5 to 6 hours if he हम्म is average। क्योंकि कैट तो आपसे कुछ और ही डिमांड कर रहा है, कैट तो आपसे डिमांड कर रहा है वेरी हाई एप्टीट्यूड कि राइट। आप, तो वही तो, फॉर दैट यू नीड, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए 5 से 6 घंटा अगर आप रोज पढ़ेंगे, यू विल गेट इन टू दैट डिसिप्लिन, यू विल गेट इन टू दैट हाई लेवल थिंकिंग। और फिर वो 6 महीने की तपस्या इज नीडेड टू क्रैक राइट एप्टीट्यूड राइट। एग्जाम्स लाइक कैट। और हम्म। especially if you are not from maths background, you need a lot of hours you need to dedicate towards maths. Even if हम्म you are strong in English, cat ki English is very critical, high critical thinking, so you हम्म need to practice English. And then logic DILR to is you need to be on the on your foot, on your toes. तो वही तो राइट। 6 महीने पहले एंड 6 घंटा रोज, और हम्म फिर बॉक्स का शेड्यूल, तो हम्म। मेंटोर्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू आउट। राइट राइट। सो ग्रेट। सो काफी 6 मंथ 5 to 6 आवर डेली डिवोट करना है गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस एस्पिरेंट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड आदित्य, कि कुछ, बाय द वे, सारे स्टूडेंट का अलग अलग मोर प्रोडक्टिव आवर होता है, किसी को मॉर्निंग में काफी बेटर होता है, किसी को आफ्टरनून, किसी को इवनिंग, बट एक आइडियल क्या शेड्यूल होना चाहिए इंग्लिश के लिए, फिर रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए? ऐसा कुछ आप शेयर कर पाओ जो कि आपके लिए काफी इफेक्टिव रहा हो तो। माय मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स वर रात के। आई यूज्ड टू हम्म लिव इन ओल्ड राजेंद्र नगर जब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीएससी, हाँ। तो वही तो फिर मेरा पूरा दिन कोचिंग में जाता था, और फिर मेरे पास, फिर मेरे को ये दिमाग में था कि बैकअप भी लेके चलना है, तो ये सीमैट सीटी जो आर कंपैरेटिवली हम्म। इजी एग्जाम, तो मैं रात को इनको लेके बैठता था। तो आई यूज टू स्टार्ट 11 12, मॉक हम्म। देता था, एनालाइज करता था, तब तक 3 4 5 बज जाती थी, एंड देन आई यूज टू स्लीप।
तो मेरा वो सर्केडियन सर्कल तो बहुत डिफरेंट था। बट सो यही है, दैट व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब पढ़ाई में दिल लग रहा है पढ़ाई करो। बट हम्म मतलब दिल लगना चाहिए, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर टारगेटिंग। राइट, कंसंट्रेशन होना चाहिए चाहे जब भी हाँ, आपका मन। चाहे दैट्स व्हाई आई जब एम भी। सेइंग ना कि हम्म, मतलब सबका अपना अपना प्रोडक्टिव आवर होता है, बट हाँ। ठीक है, बहुत लोग जैसे आइडियल टाइम मानते हैं कि 4 बजे उठ के भोर में, हम्म। जबकि वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मतलब वही वही 4 o'clock वही। मेरा कभी प्रोडक्टिव आवर रहा ही नहीं। तो तो वही। तो ऐसे ही सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट थिंग कि एज यू सेड कि आप राजेंद्र नगर भी रहे हो, वाराणसी भी आपने देखा है काफी अच्छे से, और स्टूडेंट लाइफ को भी बहुत सारा देखा होगा जो यस। एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो 12th से लेकर के यूपीएससी तक के, पूरे राजेंद्र नगर में आपको मिल जाएंगे। सो आज के टाइम पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशंस करते हैं यस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है उनको डिस्ट्रक्शन से बचना। एक तो हम्म। सोशल मीडिया होता है, बाय द वे दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, हम्म। रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं। सो व्हाट यू कैन सजेस्ट टू अवॉइड द such type of the distraction and concentrate on study? सर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक ही चीज सबसे मुझे हेल्प करती है, मोटिवेशन। व्हेन हम्म मैं जिस भी चीज को टारगेट, वॉट एवर यू आर टारगेटिंग, अपने फोन के वॉलपेपर को उसको बना लो, सामने उसका पोस्टर लगा लो कि मतलब ग्रेट। ताकि वो तुम्हें दिन भर दिखते रहे, एंड मतलब ये रहे कि भाई सिर्फ 20 दिन बचे हैं, पढ़ ले। हम्म। फिर मतलब 1.5 महीने बाद कहीं और होगा। करेक्ट तो करेक्ट। खुद से सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो वन फ्रॉम आउटसाइड कैन फीड यू सो मच मोटिवेशन कि आप कोई एग्जाम क्रैक कर दें। तो सेल्फ हम्म। मोटिवेशन इज द ओनली की। बेस्ट जिस थिंग। हाँ, और मतलब यही ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि इट शुड बी ऑल इंडिया रैंक वन। हम्म मतलब फिर मजा ही अलग होता है। तो हम्म ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर थिंग्स इन लाइफ। सेल्फ मोटिवेशन इज द की। और मतलब दोस्त वोस्त तो आई आई बिलीव कि और अच्छी जगह जाएंगे और अच्छे दोस्त बनेंगे और पैसे वाले दोस्त बनेंगे बहुत। तो इट्स करेक्ट ऑलवेज करेक्ट। लुक अप, पंच हाई, पंच अप। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉरवर्ड, जितना हाई यस। जाओगे उतनी हाई सोसाइटी और हाई इन्वायरमेंट मिलेगा। हाँ, ऑलवेज पंच अप, क्योंकि हम्म। नेवर बी कंफर्टेबल विद योर सराउंडिंग्स। चलो चलो, ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया, बिकॉज आदित्य इज वेरी एक्सपीरियंट एस्पिरेंट। सो आदित्य, फर्स्ट इन अ लास्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड एनी 5 पॉइंट इफ यू कैन मेंशन फॉर द एस्पिरेंट, नॉट ओनली फॉर द सी मैट, जो भी अदर्स एग्जाम कैट के लिए, या फिर आपके पास क्लैट का भी एक्सपीरियंस है, बेसिकली ओवरऑल एक एस्पिरेंट के लिए ऐसे 5 पॉइंट जो वो फॉलो करे कि इस सब एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंच जाए इजिली। सर तो पहला पॉइंट विल बी गेजिंग वेयर यू स्टैंड। राइट पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर कंपटीशन। कि राइट आप, राइट। क्योंकि हम लोग घर बैठ के देखते हैं, हम लोग को लगता है नहीं नहीं निकल जाएगा, निकल हम्म। जाएगा, बट यू डोंट सी कि कितना कंपटीशन है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। पहला करेक्ट। पॉइंट ये कि, और वो होता है बाय बेंच मार्किंग। और हम्म। मॉक टेस्ट दीजिए, समझिए आप क्या कहाँ स्टैंड करते हैं। दैट इज हाँ, द फर्स्ट स्टैंड। पॉइंट। सेकेंड है शेड्यूलिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड हम्म। वो शेड्यूलिंग आप खुद ही कर सकते हैं बाय मेकिंग अ टाइम टेबल विच सूट्स यू, और करेक्ट। जिससे आपको पता है कि विच इज बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज हम्म। अपस्किलिंग यू। करेक्ट। तो शेड्यूल अ गुड टाइम टेबल। और द थर्ड पॉइंट इज मेक रियलिस्टिक टारगेट्स। ये नहीं कि हम्म मतलब आप बोल रहे हैं कि 1 महीने में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 महीने में मैं टॉपर बन जाऊंगा। मेक रियलिस्टिक गोल्स, हम्म। मेक रियलिस्टिक टारगेट्स, एंड ऑल। तो यही थर्ड पॉइंट विल बी दिस। फोर्थ इज सेल्फ मोटिवेशन। ऑलवेज सेल्फ लुक मोटिवेशन। अराउंड towards your look towards your parents, look towards your friends ki how हम्म proud they will be when you crack हम्म। the exam. उस So that सिचुएशन is, को फील करो। हाँ मतलब वही, मतलब यू शुड ड्रीम, आँख खोल के सपने देखने चाहिए। सोते हुए तो सब देख लेते हैं सर। फिर करेक्ट फोर्थ ये, एंड फिफ्थ इज मॉक्स। जो मॉक। भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, बेस्ट, जो आपको मार्केट में बेस्ट मॉक्स मिल रहे हैं वो ले लो। और उसे फिर मतलब ये है कि उसमें काम चोरी नहीं, वो मॉक्स हम्म। टाइम से दो। एंड मतलब खुद को देखो 99 परसेंटाइल क्रॉस करते हुए। दीज ओके। आर द 5 थिंग्स These सर। are the 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेयर यू स्टैंड सो यू यस। इवेलुएट योरसेल्फ आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। सेकंड थिंग कि जो शेड्यूल है, टाइम मैनेजमेंट है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ यस। आप ऐड कर सकते हो कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियलिस्टिक टारगेट रखो एंड सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का आया मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक रहता नहीं। हम्म। तो सेल्फ मोटिवेशन, व्हाई यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू, व्हाट यू विल गेट, एंड उससे क्या चेंजेस हो जाएगा, उस चीज को आप सोचते रहो, एंड देन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस ओके, so one more final question, Aditya, how you come to know about the maneuver? सर, मेरी सीमैट सीईटी की जर्नी, तो हम्म यूट्यूब इज द ओनली सोर्स जहाँ से भी मुझे पॉजिटिविटी मिल रही थी, हम्म जहाँ से भी मुझे गाइडेंस मिल रहा था, तो हम्म दैट्स, मैं यूट्यूब पे, अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए। अब हम्म इट्स गुड टू हैव सम पॉजिटिव। और फिर हम्म ये मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी ये सीमैट में, तो आई वाज वेरी वरीड कि मतलब एटलीस्ट सिडनम मिल जाए, तो दैट्स हम्म व्हाई आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स। तो वही स्टिल आई एम अ लिटिल वेरी कि मेरे को सिडनम मिलेगा कि नहीं, हम्म बस बॉर्डर लाइन सीन है। हम्म। I came across Maneuver via YouTube through on YouTube. YouTube. And how was your experience about the faculty, जो भी videos या जो whatever you are content you are following, how it was helpful? Very very helpful, sir. Very हम्म helpful. हम्म। Uh, Okay, Aditya, that's it in this podcast. So hope so this discussion will be very helpful for the aspirant, those who are planning for the next year. So काफी कुछ उन्होंने learn किया actual aspirant से। As a faculty हम लोग तो guide करते रहते हैं, but जब आप जैसे actual aspirant अपना experience share करते हैं, तो देख people जो students है they can connect कि हाँ definitely they can also do that। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे multiple exam को crack कर रहे हैं। or if someone is targeting only the management entrance exam, so just consistency, self motivation and continue practice करते रहो, अच्छे फैकल्टी के गाइडेंस में प्रिपरेशंस करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, अच्छे मार्क्स से करोगे, एंड दिस इज जस्ट मैटर ऑफ सम ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करना होता है। ये well said, sir. True. स्ट्रगल होता है ओनली कुछ सालों के लिए होता है, 5 to मान लो मैक्सिमम 6 7 8 इयर्स, अगर 12th के बाद की मैं बात करूं। Hmm. बस इसके बाद अगर आपने मेहनत कर लिया तो पूरी लाइफ सेट है। ओके, सो एनी फाइनल कमेंट आदित्य फ्रॉम योर एंड, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। Nice, sir. But just what you were saying, it's better to have a quarter life crisis than a mid-life crisis. अभी हम्म, मेहनत करके अगर if you want to change your career, करेक्ट। do it now, इससे नहीं तो फिर 10 साल बाद if you look back you can't do anything. So it's हम्म, better to work now than later. करेक्ट करेक्ट। चलो, काफी इंपॉर्टेंट, जाते जाते आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन और मैसेज दे दिए सारे एस्पिरेंट को। सो गाइज कीप हार्ड वर्क एंड मेहनत करते रहो एंड कंसिस्टेंस रहो इस प्रिपरेशंस में, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन कनेक्ट विद मैनूवर, यू कैन फॉलो द मैनूवर चैनल, जहां पे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। एंड फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट आदित्य फॉर योर फ्यूचर, Thank, एंड थैंक्स टू कमिंग हियर टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर। thank you so much, sir. चलो बाय एंड थैंक यू।